Welcome class 11th. Class 11th, as you know, we have done started with the chapter number 3, trigonometry, trigonometric functions. So in the previous video we have discussed about the whole concept of the trigonometric functions. ठीक है, so basic concept के बारे में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ठीक है. So next I'm going to start with the examples of this exercise, ठीक है. Exercise 3.1 we are going with the NCERT book, ठीक है, because NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ every exercise और ਇਹਦੀ examples और part enough given ਹੈ, ठीक है. ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, that's why ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ part ਸਿਰਫ NCERT ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है. तो कल वाले ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਈ ਉੱਪਰ ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 60 ਮਿੰਟਸ. 1 ਮਿੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 60 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ 60 ਮਿੰਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਚੀਜ਼ आफ्टर दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर. एक कल आप फॉर्मूला पढ़िया सीगा. एल की है लेंथ ऑफ आर्क, आर की है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है. थीटा की है, थीटा बच्चे ये देखो ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਅਲੱਗ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 45 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ. 45 ਰੇਡੀਅਨਸ ਪੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਥੀਟਾ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦ ਰੇਡੀਅਨਸ, ਓਕੇ. ਐਂਡ ਐਲ ਤੇ ਆਰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ. ਸੋ ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜਨਸ ਆ ਗਿਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਤੋ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨਵਰਜਨ. ਸੋ ਕਨਵਰਟ 40 ਡਿਗਰੀ 20 ਮਿੰਟਸ ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਮੈਜਰ, ਡਿਗਰੀ ਰੇਡੀਅਨ ਮੈਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, 180 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ, ਓਕੇ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ 20 ਮਿੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 180 ਡਿਗਰੀ ਅਗਰ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਈ ਅਪੋਨ 180 ਰੇਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ 40 ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 40 ਰੇਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਹੈ ਨਾ. ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਓਕੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ. ਦੇਖੋ 40 ਡਿਗਰੀ 21 ਮਿੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 21 ਮਿੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਵਾ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 5:30 ਹੈ ਨਾ, 5:30, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ ਕਿ 5 ਆਵਰਸ ਪਲੱਸ 30 ਮਿੰਟਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਖੀਦਾ ਨਾ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਕਿ 5:30 ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੀ ਨਾ ਕਿ 5 ਆਵਰਸ ਹੈਗੇ ਪਲੱਸ 30 ਮਿੰਟਸ ਹੈਗੇ. ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਨਾ. ਸੋ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 21 ਮਿੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਓਕੇ. ਸੋ ਨਾਓ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੱਚੇ. ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਲਓ, 1 degree is equals to 60 minutes, okay. And if I want to calculate 1 minute, ठीक है, 1 minute तो किस तरह करोगे, 1/60 डिग्री, ठीक है ना. यूनिटरी मैथड आप छोटी क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ठीक है. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ. 1 degree equal to 60 ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, 1/60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 21 ਮਿੰਟ ਦੀ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਈ 21. ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 21 ਮਿੰਟਸ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 21/60 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. 21/60 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਕੇ. ਤੋ
सॉरी इतने 20 है, इतने 21 नहीं आ, इतने आप 20 कर लीए। ओके सो आ गया, इट मीनस 20 मिनट्स की वैल्यू कितनी आ गई इतने मेरे को 20/60 डिग्री। ओके तो इनू मैं लिख सकती है 20/60 डिग्री 1/3 डिग्री। ओके इट मीनस इतने देखो ध्यान दे नाल बच्चे मेरे को आ मैं जोड़ा मेरे को 20 मेरे को इतने आ वाली वैल्यू ना दिस वन इट मीनस मेरे को 20 मिनट्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 डिग्री। नाउ मैंने की लिख सकती हाँ 40 डिग्री प्लस मैं की लिखांगी इतने बच्चे इतने 1/3 डिग्री, या इन्हों इदा लिख लो 41/3 डिग्री कंप्लीट 41/3 डिग्री। ओके सो यह चीज़ सब तो पहले होगी। इट मीनस आ वाला क्वेश्चन हम चेंज करके मेरे को बन गया कन्वर्ट क्वेश्चन चेंज होकर बन गया मेरे को 41/3 डिग्री नू रेडियन दे कन्वर्ट करो। क्वेश्चन मेरे को बन गया हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मैं कन्वर्ट कर लिया मिनट्स नू मैं डिग्री कन्वर्ट कर लिया। नाउ इतने देखो फॉर्मूला की है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। वैल्यू कि फाइंड आउट करनी है 41/3 की, दोनों साइड पर जिन्नी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दो है ना। अगर 1 डिग्री ये इक्वल है तो 40 डिग्री कि इक्वल आएगा 41/3 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 41/3 रेडियंस। ओके इनू आप सॉल्व कर लाँगे बेटा जी, ठीक है। कितना आ जाएगा 240 इज नहीं 121/3, ठीक है, ये आ गया 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस। मेरे को वैल्यू आ गई साड़ी, ठीक है। असी की किया डिग्री नू रेडियन दे विच कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखो बेटा ये इस तरीके के नाल गिवन सीगा कि 40 डिग्री 21 मिनट्स गिवन सीगा। अगर सिंपल गिवन हो तो तुहानू कुछ भी करने की जरूरत नहीं पैंदी। जिवें मान लो इत्थे कुछ क्वेश्चन साडी बुक दे विच गिवन आ, ये देखो इन्हें जिवें इन्होंने देखो डिग्री नू उन्होंने कहा कि रेडियन दे विच कन्वर्ट करना, सो इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 11/16 आ, ठीक है, 11/16 मतलब डिग्रीज गिवन है सारे, ठीक है ना। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर, सॉरी बच्चे आ गिवन है इतने थानू फाइंड द रेडियन मेजर फॉलोइंग टू द डिग्री मेजर, मतलब आ डिग्रीज गिवन है थानू, ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रेडियन ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना, तो इट्स वेरी ईजी, ठीक है। 25 डिग्री अच्छे कुछ करने की जरूरत नहीं कि ਇਹ वाला ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दिता कि मिनट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ कन्वर्ट करोगे। माइनस साइन ਦੇ ਤੁਸੀਂ कन्फ्यूज नहीं होना। माइनस साइन ਦਾ मतलब है कि नैगेटिव मतलब क्लॉकवाइज गिवन हैगा ਤੁਹਾਨੂੰ एंगल ਤੇ आंसर ਦੇ ਨਾਲ भी नैगेटिव ही आएगा ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है ना। सो कन्फ्यूज नहीं होना, जिन्ना इतने गिवन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ नैगेटिव आ जाएगा आंसर। 240 डिग्री 520 डिग्री बिल्कुल सेम एज दैट जिदा मैं हुणे वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम एज दैट, ठीक है। टी डिग्री नू रेडियन च कन्वर्ट कर दो। हुण नैक्सट क्वेश्चन की आ गया रेडियन नू डिग्री दे विच कन्वर्ट करना, आपां रेडियन नू डिग्री दे विच कन्वर्ट करना। ओके सो सब तो पहले देखो डिग्री दे विच कन्वर्ट करना, मैं की दस्सिया जिहड़ी चीज़ फाइंड आउट करनी उन्होंने राइट साइड पर लिखना। ओके सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के इक्वल गिवन है तो 1 रेडियन के इक्वल हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है जी। पाई रेडियन असी वैल्यू कि फाइंड आउट करनी है 6 रेडियन, यदा मतलब 6 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री। ओके पाई की वैल्यू बच्चे इतने पुट की करांगे 22/7, ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। सो इतने 6 रेडियन की वैल्यू तुम इन्हू कैलकुलेट कर सकते हो। यदी वैल्यू बच्चे मेरे को आई है अगर इन्हू आप पूरी तरह कैलकुलेट करांगे ऊपर वाली कैलकुलेशन करांगे 1080, ठीक है। हाँ जी 1080 मल्टीप्लाई बाय 7/22, ठीक है, डिग्रीज नाल यदि आप कटिंग करते हैं इतने आएगा 11, इतने कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 2 के टेबल से कटिंग की 5407, ठीक है। इनू 540 मल्टीप्लाई बाय करो 7 4 28 2 35 प्लस 37, ठीक है, 11 इन्ने आ गया साढ़े कोल डिग्रीज, ठीक है। वैसे तो डिग्री के चेंज हो गया, ठीक है, बट अपना ना पूरा एग्जैक्ट आंसर देना होंगे पेपर के एग्जैक्ट आंसर ही पूछा होंगे, मतलब वो वैल्यू किन्नी हैगी, मतलब किन्ने डिग्री किन्ने मिनट तो किन्ने सैकेंड प्रॉपर एक एग्जैक्ट आंसर आप देना होंगे यदा, ठीक है। तो इनू आप एग्जैक्ट आंसर कितना देवांगे देखो यदा देखो सब तो पहले 11 अगर तुम ये डिवाइड करो, ठीक है, 11 होगा 3780 के नाल डिवाइड करो, ठीक है। सब तो पहले तो की आएगा सब तो पहले तुहाडे कोल देखो इत्थे आ जाएगा 3
33 4 एंड 8 44 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 4 ਬਚ ਗਿਆ 40 343 ਆ ਗਿਆ, ठीक है। इस तो बाद 40 आ गया सीगा, 7 बच गया है ना, पॉइंट लगाओगे, ठीक है। 7 0 तो 7 अपॉन 11 मतलब आ वैल्यू रहेगी। मैं डिवाइड किया इनू जस्ट, ठीक है, तुम करके भी देख सकते हो, डायरैक्टली कर दिता मैं, ठीक है। इदा यह आ गई वैल्यू। इट मीनस कैन आई राइट इट एज 343 डिग्री कंप्लीट प्लस 7 अपॉन 11, ठीक है, डिग्री। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 7 अपॉन 11 है ना, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 343 डिग्री प्लस आ देखो बच्चे डिग्री ਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू किन्ने 60 मिनट्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ 7 अपॉन 11 डिग्रीज, तो की करांगे सिंपली 7 अपॉन 11 डिग्री इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 60, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਿੰਟਸ, ठीक है। सो ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਟਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 420 अपॉन 11 मिनट्स, ठीक है। तो वैन यू डिवाइड इट विद दिस ना की आ जाएगा 3 दे नाल करोगे डिवाइड 33, ठीक है। 33 दे नाल करोगे दैन इट बिकम्स 8, ठीक है। सो इत्थे आएगा नाल बच्चे 33 दे नाल कीता ते 90 है ना, 90 बच गया, तो 8 दे टेबल ते डिवाइड करोगे फिर 88, फिर 2 बच जाएगा है ना, 38 2 अपॉन 11। मैं डिवाइड कर रही हूँ, मैं एज इट इज़ डिवाइड कर रही हूँ, तुम डिवाइड कला कला करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके के नाल, ओके। सो इत्थे ते आया गया, इट मीनस इन्ने डिग्री इन्ने 7 अपॉन 11 डिग्री इज इक्वल्स टू 38 2 अपॉन 11 मिनट्स, ठीक है, इस तरीके के नाल। नाउ मिनट्स सॉरी, ठीक है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दी मिनट्स नूं की करना आपां, फिर इहनूं सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट करना। सब तो पहले तुहानूं बेटा मैं इदां लिख सकदी हां 38 मिनट प्लस 2 अपॉन 11 मिनट्स, ठीक है ना। ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ वाला मिनट्स, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 343 डिग्री 38 ਮਿੰਟਸ, ठीक है ना। फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ मतलब ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। 2 अपॉन 11 मिनट्स कैन वी कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स, ठीक है ना। सो वी नो दैट कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ठीक है ना। तो 2 अपॉन 11 मिनट्स की वैल्यू की होएगी साढ़े को, ध्यान नाल देखो सारे जने। 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, ओके। दिस इज 120 अपॉन 11 बच्चे। 120 अपॉन 11 तुम डिवाइड करके देख लो, करिए डिवाइड 120 अपॉन 11 इतने करके देखिए। 11 डिवाइडेड बाय 120 कितना आएगा, सब तो पहले तो इट इज़ 110, 10 से डायरैक्टली डिवाइड कर लो इन्हों, ठीक है। 10 से डिवाइड किया 110, नीचे की आया 10, ठीक है। इतने लगाओगे पॉइंट, ठीक है, इतने आया 0, ठीक है। सो क्या आएगा 9, इट इज़ 99, ठीक है। इतने की लिख सकते हो 10.9 मिनट्स, ठीक है। इस तरीके के नाल डिग्री इन्ने सैकेंड इन्ने डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सैकेंड, ठीक है। जो भी डिग्री मैजर की गल की जाए ना, तो प्रॉपरली आंसर देना है इहदा, ठीक है ना। प्रॉपर आंसर तुम दे के आओगे, जो तक यह परफेक्टली डिवाइड नहीं हो जाता उदों तक परफेक्ट आंसर दे के आओगे, ठीक है। सो बच्चे इस वाले कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन इस टाइप के नाल कर रहे हैं तुम, ठीक है। देखो ये फर्स्ट तो सैकेंड क्वेश्चन थोड़ी NCERT बुक के कन्वर्जन है, आ वाला डिग्री मेजर रेडियन च कन्वर्ट करने, डिग्री च कन्वर्ट करने, ठीक है ना, ए वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो नैक्सट इज दी देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ दिस, ठीक है। बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो असीं किस तरह करांगे, ध्यान नाल। हाँ जी बच्चे, दिस वन इज द नैक्सट क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। हियर इट इज गिवन दैट कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस, इट मीन्स रेडियस वी नीड टू फाइंड आउट, ओके। लेंथ ऑफ द आर्क इज 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल ओवर हियर, ओके। देखो सारिया वैल्यूज तो सानू गिवन है, तुहानू इत्थे लगता है कि हाँ जी डायरैक्टली पुट करो, एल की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की पुट कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पर देखो मैं जो भी तुहानू वाला फॉर्मूला बच्चे इंट्रोड्यूस कराया सीगा, कंसैप्ट दसिया सीगा, आई सेड कि
ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਥੀਟਾ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੇਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੈਜਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਵਰਟ 60 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਦ ਰੇਡੀਅਨਸ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਵਰਟ, ਓਕੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो की लिखोगे 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। सो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 60 रेडियन, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 रेडियंस, ओके। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओवर हियर, ठीक है। थीटा की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू 37.4, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ओवर हियर, ठीक है। सो आर कितना आ जाएगा बेटा जी, देखो इतने कैलकुलेशन यह होता 37.4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन पाई, टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7, इट इज़ मैंशन कि तुम पाई 22/7 लै सकते हो फॉर द कैलकुलेशन परपस, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना भी आ वाला पाए तो इतने आ वाला सीगा, मतलब पाए नूं तो मैं इतने वो लैंदी पई सी कि 180 डिग्री के इक्वल है ना, बट दैट इज़ इन द केस ऑफ कन्वर्जन और रेडियन दे विच कन्वर्ट करने के लिए लेना, बट फॉर द कैलकुलेशन परपस आप हमेशा यह जी चीज़ है ना, दिस इज़ द एंगल पाई बाय 3 एंगल है इतने, फॉर द कैलकुलेशन परपस पाई इज़ 22/7, ओके, या 22/7 या 3.14 वही लाओगे, ओके। 22 मल्टीप्लाई बाय 7, सो कैलकुलेशन वर्क बच्चे तुम खुद करोगे, मैं देख के लिख रही हूँ, तुम खुद करोगे 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस ओवर हियर, ओके। इस तरीके के नाल बच्चे आ वाला क्वेश्चन तुम जो है वो करोगे, ओके। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम योर NCERT बुक। बच्चे देखो इतने की गिवन है कि द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, how far it the tip moves if in 40 minutes, minute hand of the clock दी length given है, मतलब एक clock है, clock दी length है जी minute hand, ठीक है। मैं clock बना के दस रही हूँ तुहानूं, देखो clock है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 2 हैंड्स मतलब 2 पिन्स गिवन ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ आवर्स वाली ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पिन है ना वो आवर्स ਦਾ टाइम ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ कि किन्ने मिनट्स हो गए, ठीक है। मान लो कि ਇੱਥੇ 12 है, 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ दसती है। तो एक जी आर हैंड होंगे, एक होंगे मिनट हैंड, ठीक है ना। मान लो अगर मैं कह कि टाइम इज़ इफ आई से जोड़ा मिनट हैंड होंगे लंबा होंगे, अगर मैं कह कि 1 o'clock इज़ द टाइम, ठीक है ना, कुछ इस तरीके होंगे 1 o'clock, मतलब ए वाला दिस इज़ द आर हैंड, दिस इज़ द मिनट हैंड, सब तो पहले तो पता होना चाहिए, ओके। देखो अगर उन्होंने कहा कि एस आर हैंड की मिनट हैंड की सॉरी, ठीक है ना, मिनट हैंड की लेंथ सानू गिवन है 1.5 सेंटीमीटर इज गिवन, ओके। हाउ फार द टिप मूव्स इन द 40 मिनट्स, ठीक है। हम 40 मिनट्स के कहते कि कितना टिप जी किन्नी मूव करेगी। देखो अगर मैं टाइमिंग इतने मान लो 12 o'clock ही लै लवां, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी 40 मिनट्स की अगर मैं गल करा तो मतलब आ वाली टिप जी है इतों तक पहुँच जाएगी, ठीक है ना, तो ही 40 मिनट्स बनने सेंटर के तो ही 40 मिनट्स होंगे, ठीक है। इट मीनस आप की फाइंड आउट करना, फाइंड द टिप विच इट मूव्स इन द, ठीक है, यह फाइंड आउट करना। ध्यान देना देखो हाउ फार डज द टिप मूव्स इन द 40 मिनट के टिप कितना मूव की है, ठीक है। इतने तुम समझ सकते हो कि आ की बन रही है, आर्क बन रही है, ठीक है ना। यदा मतलब उन्होंने की मैंने फाइंड आउट करने के लिए क्या आया वा, तो आप की फाइंड आउट करना, आई नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क, कि 40 मिनट के जिन्नी आर्क बनी है इतने, ठीक है, वो की फाइंड आउट करके दिखाओ, लेंथ फाइंड आउट करके दिखाओ कि 40 मिनट्स के कितनी फाइंड आउट, ठीक है। हम फॉर्मूला क्या होंगे साढ़े को थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ठीक है। चलो मिनट हैंड की लेंथ 1.5 गिवन है, इट मीनस आ जी इतने पिन गिवन है सी इदा करके, है ना, वो तो लेंथ 1.5 गिवन है, मतलब वो लेंथ में मैं की लै सकती हाँ, वो रेडियस हो गया, ठीक है। आ जी मूव कर रही है दैट इज़ द लेंथ होगी, तो एंगल लेंथ तो चलो मैं फाइंड आउट करनी है, रेडियस मैंने गिवन है, थीटा का की करिए, एंगल तो गिवन नहीं है, सेंट्रल एंगल किस तरह लवांगे, ठीक है। तो देखो हम सेंट्रल एंगल सारे बच्चों ने किस तरीके के नाल लेना, ध्यान नाल देखो सेंट्रल एंगल, देखो सानू पता है कि अगर एक जो वाली पिन अगर है मिनट हैंड अगर पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करे एक क्लॉक का, ठीक है ना, तो कितना एंगल बनाएगी पूरे सर्कल के कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। तुम लिखोगे
कि इन 60 मिनट्स, अगर मैं 60 मिनट की गल करा, अगर मैं 1 आवर की गल करा, इन 60 मिनट्स, ठीक है, मिनट हैंड जी है, मिनट हैंड इनू कहेंगे मिनट हैंड, जी मिनट वाली सूई होंगी, ठीक है, मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंदी है, ठीक है। यदा मतलब 60 मिनट दे विच कितना एंगल बनता, 360 डिग्री एंगल बना लेंदी हो, ठीक है। अगर 1 मिनट की गल करा तो 1 मिनट के विच कितना एंगल बन जाएगा, 360/60 डिग्री, ठीक है। इत्थे किन्ने मिनट की गल की है, 40 मिनट्स की, सो 40 मिनट के विच कितना एंगल बनेगा भी, ठीक है। दोनों साइड ते 40 के नाल मल्टीप्लाई, कैंसल आउट कर देनिया चीज़ां, ठीक है जी। इट इज़ 240 डिग्री, ठीक है। इट मीनस 40 मिनट के विच कितना एंगल बनेगा इस पॉइंट के उपर, ठीक है ना। अगर इतने इदा लगा लीए, इट मीनस मैं दोबारा क्लॉक बना के दिखा देनी है इस तरीके के नाल, ठीक है ना। अगर ए वाली जो है मिनट हैंड इत्थे आ जाता है ना, इत्थे आ जाता है, सो आप इस केस ए वाला एंगल देखना कि एंगल कितना सीगा, सो दैट एंगल इज़ आप हुणे फाइंड आउट किया, इट इज़ 240 डिग्री, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट लवांगे तो 360 बन जाना सीगा, सो एंगल इज़ 240 डिग्री। तो हुंदा सब कुछ ही आ गया साडे कोल, नाउ 240 डिग्री, तो 240 डिग्री तो नहीं पुट करीदा बेटा आप, ठीक है ना। वी नो दैट कि थीटा कि पुट करना, रेडियंस के पुट करना, ओके। सो सब तो पहले वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ द रेडियंस, ठीक है। सो डायरैक्टली यू विल की कर सकते हो, इत्थे तुसी इनू मल्टीप्लाई कर दो जी π/180 के नाल, ठीक है। हुण मैं डायरैक्टली कर रही हूँ, तुहानूं पता हो जाना चाहिए कि इस किद्दां लाया, ठीक है जी। इन्हें तुसी सॉल्व करोगे, इट विल बिकम 4π/3 रेडियंस, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू एंगल। नाउ थीटा इज़ हेयर, इत्थे पुट कर दो ये 4π/3 थीटा की वैल्यू, एल तो मैं फाइंड आउट करना है, रेडियस की वैल्यू बचे 1.5, ठीक है। एल की वैल्यू बाय कैलकुलेशन मैं डायरैक्टली लिख रही हूँ, तुम करोगे कैलकुलेशन करके लिख लो, यदि एल इज इक्वल्स टू 6.28, ओके। इस तरीके के नाल करोगे क्वेश्चन, ठीक है। सो नैक्सट इज दी एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 ध्यान दे नाल देखो बच्चे, इत्थों ही देखो, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। देखो अगर सेम सेम आर्क दे 2 सर्कल्स है, ठीक है। मान लो कुछ इदा दे, मैं फिगर बना के दस देनी 2 सर्कल्स आ, ठीक है ना, फिगर भी आप बनाइए नाल, है ना। 2 सर्कल्स आ, उन्होंने वह क्या कि वही जी लेंथ है, तो आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड्स, मतलब आर्क सेम हैगी, आ वाली चीज़ सेम हैगी, ठीक है। दोनों सर्कल के ए तो बी, है ना, इत्थे भी ए तो बी हैगी, आर्क इज सेम ओवर हियर। सबटेंड्स एंगल इज 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, मतलब एक बना रहा 65 डिग्री बना रहा, एक बना रहा 110 डिग्री बना रहा, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियस, उन्होंने रेडियस की रेशो निकाल के दिखा सो। लेट आप रेडियस ले लेना कि यदा रेडियस R1 है, यदा रेडियस R2 है, ठीक है। लेंथ सेम है, इट मीनस यदी भी लेंथ L है, यदी भी लेंथ L है, ठीक है। तुसी समझ रहे हो ना कि उन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ द आर्क इज सेम। अगर मान लो क्या होंदा कि सेम नहीं हैगी, मैं इत्थे L1 तो L2 लैनी सी, डिफरेंट लैनी सी, ठीक है ना। नाउ इट इज़ सेम ओवर हियर, वी नीड टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ R1 रेशो R2 फाइंड आउट करनी। तो सब तो पहले ये आप फॉर्मूला लगावांगे, की बनेगा, अगर इतने θ1 लै लो, मान लो θ1 इज इक्वल्स टू L/R1, ये फॉर्मूला लै लो θ2 इज इक्वल्स टू L/R2, ठीक है। नाउ θ1 की वैल्यू 65 डिग्री, इतने 65 नहीं पुट करना, ठीक है। सो सब तो पहले तुम की करोगे, कन्वर्ट 65 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है। मैं डायरैक्टली लिख रही हूँ कि 65 में रेडियन के कन्वर्ट करके कितना आया अकॉर्डिंग टू योर बुक, देखो थोड़ी बुक च किया होया, देख ही लीए इतने। θ1 इक्वल टू 65 डिग्री मल्टीप्लाई इट विच π/180, मैं दसिया कि रेडियन च लैनी, आ भी वैल्यू रेडियन च, भी वैल्यू रेडियन च, ठीक है। L बी द लेंथ ऑफ ईच आर्क, L इज इक्वल्स टू R1 θ1, लिख सकते हो ना इत्थे, L इज इक्वल्स टू R1 θ1, इत्थे L इज इक्वल्स टू R2 θ2, ओ सॉरी, ठीक है इदा, ठीक है। नाउ यह भी L है, यह भी L है, बोथ ऑफ द लेंथ आर सेम, इसका मतलब आप आवलियां 2 चीज़ों की कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं।
ਆਵਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਲੈਂਥ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਟਿੰਗਸ ਕਰ ਦੋ, R1/R2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ 360 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 360 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਫਿਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर गिवन है, एल की वैल्यू 22 गिवन है, एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, सिंपली एल अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगा के। डायामीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब अभी बच्चे खुद सॉल्व करो, थोड़ा जहा डिफरेंट है बट सॉल्व करो। ए बच्चे लेंथ ऑफ द कॉर्ड गिवन है, ध्यान रखो लेंथ ऑफ द आर्क नहीं गिवन हैगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड गिवन है, कॉर्ड तो तुहानू लेंथ ऑफ आर्क खुद फाइंड करनी पेगी। ठीक है, थोड़ा कॉन्सैप्ट यूज़ करो ये। इफ इन द टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आही वाला सेम बच्चे 5th एग्जाम्पल एंड अगला क्वेश्चन सेम है। एंगल इन द रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स, लेंथ 75 सेंटीमीटर, टिप इंक्रीजेस। आ बच्चे मैं थोड़ा जहा दस देनी है पेंडुलम का की केस आ। बच्चे पेंडुलम का क्वेश्चन गिवन है, इत्थे देखो ध्यान देना। पेंडुलम बच्चे कुछ इस टाइप का होंगे। ठीक है, मान लो इदा का ना गोल जा पेंडुलम गिवन होंगे, तो इदा करके ऑसिलेट करता, मूव करता। ओके, तो इस पेंडुलम की लेंथ गिवन है 75 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, मान लो कि यह वाला पेंडुलम जो इस साइड से इधर को मूव किया। ठीक है, इस साइड से इदा मूव किया। ठीक है, टॉप तो भी मूव करेगा, इदा मूव करेगा, इधर को मूव किया। ठीक है, तो बच्चे इत्थे कोई एंगल क्रिएट होएगा ना, जो इतों आएगा इत्थे आके दोबारा इधर को मूव करेगा। ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं इस तरीके के नाल है। उस बाद इधर मूव करेगा, इत्थे कोई एंगल क्रिएट हो जाएगा साढ़े को। ठीक है ना, सो ए वाला कहते कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, आही वाला तुसी एंगल जो ना जो इत्थे क्रिएट हो रहा है फाइंड आउट करना। तो जो कि लेंथ एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ द लेंथ आर्क ऑफ लेंथ कितनी गिवन है इत्थे बेटा 10 सेंटीमीटर गिवन आ। एक केस 10 सेंटीमीटर है, फिर 15 है, फिर 21 है। तीनों सम तुसी कर लेने। एक केस 10 सेंटीमीटर ले लेनी है, फिर एक बारी 15 ले लेनी, एक बारी 21 ले लेनी। इट मीन्स दिस इज द रेडियस, this is given as L, okay, and you need to find out the value of theta over here। all the things are given, you need to find out the value of theta over here। ठीक है, सो इस टाइप के बच्चे क्वेश्चंस करोगे। 3.1 एक्सरसाइज है, सो वेरी सिंपल। ठीक है, ध्यान नाल करो अगले क्वेश्चंस। कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम द NCERT। दीज क्वेश्चंस आर इनफ फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।